Most believers ज्यादातर विश्वासी have just learned to beg before God and not exercise their authority. सिर्फ ये सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने आके भीख कैसे मांगनी है, गिड़गिड़ाना कैसे है, लेकिन अपने अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं सीखते। We have to develop spiritual resistance to the enemy. हमें आत्मिक बल सीखना है कि हम दुश्मन का सामना कर पाएं। Devil is not a decent fellow. शैतान सभ्य व्यक्ति नहीं है। He will not go because you request me, dear devil, would you please go? वो इसलिए नहीं जाएगा कि आपने विनती निवेदन किया था, प्रिय शैतान आप प्लीज चले जाएं। He has to be kicked out by force. उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता I है। said he will have to be kicked out by force. मैंने कहा उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता है। He will not tell you what you will eat, what you will not eat, where you will go, where you will not go. वो आपको ये बताने का अधिकारी नहीं है कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं, कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं। Oh, हमें peanut से एलर्जी है। अरे चुप करो ये बकवास। Use your authority and eat the peanut in Jesus' name. Stop all the nonsense and start to eat what God has given. Allergy is just a limitation devil has set on your life. एलर्जी सिर्फ एक सीमा है जो शैतान ने आपकी जिंदगी पे लगाई कि तुम ये नहीं कर सकते। So this is the fourth part of the series Spiritual Warfare. आज चौथा भाग है आत्मिक मल्लयुद्ध की शिक्षा का। Amen. Amen. And I believe it is a very important revelation that we are going to learn today. और मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। The truth that you will learn today जो सत्य आप आज सीखने वाले हो will empower you to keep devil grounded. वो आपको सशक्त करेगा कि आप शैतान को जमीन पर रखो अपने जीवन में। Amen. The truth that you will learn today जो सत्य आप आज सीखोगे will empower you to live a long life on this earth. वो आपको प्रबल करेगा कि आप इस पृथ्वी पर एक लंबा जीवन जी पाओ। Will change your narrative from a victim to a victor. वो आपकी कहानी को बदल देगा कि आप बेचारे नहीं, आप शिकार नहीं, आप जयवंत हैं, विजेता हैं। Come on, say I am not a victim. बोले मैं शिकार नहीं हूं। मैं बेचारा नहीं हूं। You're not a victim. आप बेचारे नहीं हो। You're not a victim. आप बेचारे नहीं हो। You are victorious ones in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में जयवंत हो। You are not ordinary people. आप साधारण नहीं हो। Amen. Today I want to teach you about the authority you have in Christ Jesus. आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं उस अधिकार के बारे में जो मसीह यीशु में आपको मिल चुका है। Each one of you आप में से हर कोई who is born again, जिसने नया जन्म पाया and who has openly declared that Jesus is your Lord, और जिसने सरेआम घोषणा की है कि यीशु मेरा प्रभु है, you have authority. आपको अधिकार दिया गया है। Amen. आमीन। So we are going to learn something and we are going to unlearn many things. सो हम कुछ सीखेंगे और बहुत सी बातों को अपने दिमाग से हटाएंगे, उनको Many अपने जीवन से wrong हटाएंगे। teachings that we have heard over the years which has hindered us to not walk in victory. बहुत सी गलत शिक्षाएं जो हमने कई सालों सुनी जिनकी वजह से हम जय में नहीं जी सके। Amen. And I believe one of the most misunderstood thing when it comes to authority is the teaching of sovereignty of God. और मैं समझता हूं जब अधिकार की बात आती है सबसे गलत शिक्षा जो है जिसको सबसे गलत समझा गया है वो परमेश्वर की स्वेच्छा की शिक्षा है। Many believers don't use their authority because they think God does what he wants to do. बहुत से विश्वासी अपने अधिकार का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। Amen. And that's where they miss it. और यही वो गलती करते हैं। But do you know, as believers in Christ Jesus, you have authority. पर क्या आप जानते हैं मसीह में विश्वासी होने के कारण आपको अधिकार मिला है। But before I take you to scripture, I just want to tell you something. पर इससे पहले मैं आपको वचन में ले जाऊं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। Those people who have authority and don't do anything, वो लोग जिनको अधिकार मिला है पर वो उसका कुछ नहीं करते, and those people who are ignorant of their authority, both have the same results. और वो लोग जो अपने अधिकार के लिए अनजान हैं, दोनों के जीवन में एक सा फल होगा। That means if you don't use your authority, that authority is useless. इसका मतलब अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो निकम्मी है, बेकार है। In the court of law,
एक कचहरी में let's take an example. एक उदाहरण लेते हैं. A father files a case that his son was in park and was kidnapped. एक पिता ने केस दर्ज किया कि उसका बेटा पार्क में खेल रहा था, उसको कोई किडनैप करके ले गया. So the investigation started. तो उस पर खोजबीन शुरू हुई. They found out that there were CCTV cameras in the park. उनको मालूम हुआ कि सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे पार्क में. And in the park, they saw a footage that the father is sitting on the bench, and in front of him, some gangsters come and they kidnap his son. और वो सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि वो बाप जो था वो गार्डन में बैठा हुआ था बेंच पर, उसके सामने उसका बेटा खेल रहा था और कुछ गैंगस्टर्स आए, उसको उठा के ले गए, गुंडे आए. And in front of him, they took him and he did nothing. और उसके सामने आकर ले गए अगवा करके, और उसने कुछ नहीं किया. In the court of law, he will be charged guilty of the crime. कानून की नजर में वो भी उतना ही जुर्म का हिस्सेदार ठहरेगा. The court will say if he was innocent, why didn't he do anything about it? कोर्ट कहेगा अगर इसकी कोई गलती नहीं थी तो उसने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में. Please understand what I'm saying. समझेगा जो मैं कह रहा हूँ. When you don't do anything, when the enemy comes against you and you allow him to do whatever he wants to do, you give him power. जब दुश्मन आपके जीवन के विरोध में आता है कुछ करने के लिए और आप कुछ नहीं करते, उसका जो करना है करने देते हैं, तो आप उसको ताकत देते हैं अपने जीवन के ऊपर. Your ignorance is Satan's bliss. आपकी अज्ञानता शैतान के लिए खुशी का कारण है. He loves it. उसको बहुत प्यार है उससे. He doesn't want believers should know who they are in Christ Jesus. वो नहीं चाहता कि विश्वासी लोगों को पता लग जाए कि वो मसीह में कौन है. Amen. Amen. In fact, can I say that most of the Christians who have made Satan so powerful. बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत से मसीह हैं जिन्होंने शैतान को इतना शक्तिशाली बनाया हुआ है. They talk about Satan, they dream about Satan, they eat about Satan. वो शैतान के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में सपने देखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं. So please hear me. इसलिए मुझे सुनिएगा. Your inability to resist the enemy gives him power. शैतान का सामना करने में जब आप असमर्थ होते हैं, उस वजह से उसको ताकत मिलती है. You are not people without authority. क्योंकि आप बिना अधिकार के लोग नहीं हो. Pastor, what can we do? पास्टर हम क्या कर सकते हैं? Everything. सब कुछ कर सकते हैं. Stop seeing yourself with the grasshopper mentality. अपने आप को टिड्डियों की तरह देखना बंद कर दो, उस मानसिकता से देखना बंद कर दो. You are not grasshoppers. आप टिड्डियां नहीं हैं. You are the body of Lord Jesus Christ of Nazareth on this earth. आप मसीह यीशु की देह हैं इस पृथ्वी के ऊपर. Amen. आमेन. So let's see Genesis 1:26. I will take you through some scriptures उत्पत्ति 1:26 मैं कुछ आयतें आपको दिखाऊंगा. until you are fully convinced जब तक आप पूरी तरह राजी ना हो जाओ that you have authority. कि आपके पास अधिकार है. Amen. आमेन. Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26. Then God said, फिर परमेश्वर ने कहा, let us make man in our image, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार according to our likeness. अपनी समानता में बनाएं Let them have dominion. और वे अधिकार करें. God didn't say, let us have dominion. God said, let them have dominion. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हम अधिकार रखेंगे, परमेश्वर ने कहा उन्हें अधिकार रखने देंगे. That means इसका when मतलब God said, let them have dominion, God limited himself in his dominion. जब परमेश्वर ने कहा कि हम उन्हें अधिकार रखने देंगे, इसका मतलब उसने अपने आप को सीमित कर लिया अपने अधिकार में. Amen. Because he gave earth to children of men. क्योंकि उसने पृथ्वी मनुष्य के बच्चों को दी. Do you know who made Satan? आप जानते हैं शैतान को किसने बनाया? Anyone? कोई है? God? परमेश्वर ने. How many people say God? कितने लोग कहते हैं परमेश्वर ने शैतान को बनाया? How many people have no idea? कितने लोगों को कोई अंदाजा नहीं है? We made Satan, हमने शैतान को बनाया, not God. परमेश्वर ने नहीं. When Adam sold his authority to Satan, he became Satan. जब आदम ने अपना अधिकार शैतान के हाथों बेच दिया, उसको सौंप दिया, तब वो शैतान बना.
God had never given authority to Satan. God gave authority to Adam, and it was Adam who by deception sold it to Satan. परमेश्वर ने कभी शैतान को कोई अधिकार दिया ही नहीं था। परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम को दिया था, और जब आदम ने धोखा खाकर अपना अधिकार शैतान को सौंप दिया, तब उसने शैतान को बनाया। Isn't that crazy? That all the destruction that Satan is doing, he is doing it by using the authority that God gave us. क्या ये हैरानी की बात नहीं कि जो विनाश शैतान कर रहा है उस अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हुए कर रहा है जो परमेश्वर ने हमें सौंपा था। Amen? So the Bible is saying, God is saying, let them have dominion. परमेश्वर ने कहा कि उन्हें अधिकार करने दो। So God in His sovereignty तो परमेश्वर ने अपनी सुइच्छा से made man a sovereign being. मनुष्य को सुइच्छा रखने वाला प्राणी बनाया। When God made man a sovereign being, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सुइच्छा रखने को दिया, God also limited Himself. परमेश्वर ने खुद को भी एक सीमा में रोक लिया। This is a false teaching that whatever happens because God wants it. ये एक झूठी शिक्षा है कि जो कुछ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर चाहता है। कैसा? If you believe it, अगर आप ऐसा it मानते is हो going to kill you. तो ये आपको मार डालेगी ये शिक्षा, Because you will take no responsibility for your life. क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए कोई जिम्मेदारी ही नहीं लेंगे। फिर जो भी होगा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. whatever will happen, something good will come out of it. No, नहीं नहीं, I'm sorry. माफ कीजिएगा, Some people don't look happy. कुछ लोग खुश नहीं दिख रहे, But I'm not here to make you happy. लेकिन मैं यहाँ पर आपको खुश करने के लिए नहीं आया। I'm here to train you in righteousness so that you shall live मैं आपको and your generation shall live. धार्मिकता में प्रशिक्षित करने आया हूँ ताकि आप जिएं और आपकी पीढ़ियां जिएं। Amen? Amen. The Bible says it is not God's will that any man should perish. बाइबल कहती है परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी मनुष्य नाश हो। Is that true? Have you read that in the क्या ये Bible? सच है? आपने पढ़ा है बाइबल में? Are people perishing on this earth? क्या लोग नाश हो रहे हैं पृथ्वी पर? Yes. हाँ। That means even though it's God's will that nobody should perish, still people are perishing. इसका मतलब हालांकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि कोई भी पृथ्वी पे नाश ना हो, फिर भी लोग नाश हो रहे हैं। Amen? How many of you know that there was a time where God wanted you to go in a direction, but you went in another direction? Anybody? Or is it just me? कितने लोगों के जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया कि जब आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता था कि आप एक दिशा में जाएं, लेकिन आप उसकी विपरीत दिशा में गए? कोई है यहाँ पर या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ? Did God force you? क्या परमेश्वर ने आपसे जबरदस्ती की उस समय? नहीं। So God does not control you 100%. सो परमेश्वर 100% नियंत्रण नहीं करता आपके जीवन If पे। God doesn't control you, what makes you think that He controls other people? अगर वो आप पर नियंत्रण नहीं करता तो आपको क्यों लगता है कि वो दूसरों पर नियंत्रण करता है? Have you heard this? God is in control, brother. क्या आपने सुना है परमेश्वर नियंत्रण में है भाई? Did you read that in the Bible? वचन में पढ़ा है कभी? If God was in control, do you think the earth would be in such a mess? अगर परमेश्वर नियंत्रण में होता तो पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा होती? The problem is man is in control. समस्या ये है कि God मनुष्य is in charge, but that in charge gave the control to man. You are in control, not God. समस्या ये है कि मनुष्य नियंत्रण में है, परमेश्वर सब चीजों के ऊपर मालिक है, लेकिन उस मालिक ने अधिकार मनुष्य को दिया, नियंत्रण मनुष्य को दिया। आप हर एक चीज के ऊपर नियंत्रण। If God was in control and everything was happening which God was wanting, why did He give authority to us? अगर परमेश्वर ही नियंत्रण में था और सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार ही होता है तो फिर उसने हमें अधिकार क्यों दिया? Are you alive? जीवित हैं? Am I talking to the right set of क्या people? मैं सही लोगों से बात कर रहा हूं? See, many Christians don't like this message because it puts responsibility on their shoulder. बहुत से मसीह लोग इस संदेश को पसंद नहीं करते क्योंकि इसके द्वारा जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है। Amen? आमीन। So God gave authority to man. परमेश्वर ने अधिकार मनुष्य को दिया, Man gave authority to Satan मनुष्य ने अधिकार शैतान को दिया and made Satan the god of this world. और शैतान को पृथ्वी का राजा बना दिया। Then Jesus came, God came as a man. तब यीशु आया मनुष्य के रूप में। Please hear me carefully. सुनिएगा Who ध्यान gave से। the authority to Satan? किसने अधिकार दिया शैतान को? Man, मनुष्य ने, not God. परमेश्वर ने नहीं, Man. मनुष्य ने। So God came as तब परमेश्वर आया man मनुष्य and रूप में snatched it back from Satan और शैतान से छीन लिया वापस वो अधिकार and gave it back to us. और वापस हमें दे दिया।
Let's see the scripture. ये वचन देखते हैं। Matthew 28:18. I'll read from the Amplified Classic Version. मत्ती 28:18 पास्टर एम्प्लीफाइड क्लासिक से पढ़ेंगे उसको। Jesus approached, breaking the silence, and said to them, "All authority, all power of rule in heaven and on earth has been given to me." यीशु पास आए चुप्पी को तोड़ते हुए और उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Jesus take the authority back यीशु ने अधिकार वापस ले लिया and gave it to his church, gave it to his body. अपनी कलीसिया, अपनी देह को दे दिया। So who has authority now? किसके पास अधिकार है अब? Who has authority now? किसके पास है अधिकार? Us. But if you don't do anything about that authority, you will live as people who have no authority. लेकिन अगर आप उस अधिकार का कुछ नहीं करेंगे तो आप अधिकारहीन लोगों की तरह जिएंगे। Are you with me? मेरे साथ हैं? Like that father who saw his son being kidnapped and did nothing, उस पिता की तरह जिसके सामने उसके बच्चे को अगवा किया जा रहा था और उसने कुछ नहीं किया उसका, will be held guilty. हम भी उसके जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। Amen? The Bible says give no place to Satan. That means you can give him place. बाइबल कहती है शैतान को कोई जगह मत दो अपने जीवन में। इसका मतलब आप शैतान को जगह दे You सकते cannot हो। say, God, why did you allow Satan? God would say, why did you allow Satan when I gave you my authority? आप ये नहीं कह सकते परमेश्वर क्यों आपने शैतान को मेरे जीवन में जगह दी। परमेश्वर कहेगा तुमने क्यों जगह दी जब मैंने तुम्हें अपना अधिकार दिया था। तो The Bible tells us, give no place to devil. बाइबल हमें बताती है शैतान को जगह मत दो। Amen? आमीन। Are you guys with me? मेरे साथ हैं? Let's see, Matthew 10:1. मत्ती 10 उसका 1 देख। We'll read some couple of scriptures and then I'll explain how we can walk in our authority. हम कुछ आयतों को देखेंगे फिर सीखेंगे कैसे हम अधिकार में चल सकते हैं। Matthew 28:18. Then he called his 12 disciples to him. He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kind of sickness and all kind of disease. मत्ती 10 उसका 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। Amen? You have authority over all kind of demons. आपके पास अधिकार है सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर। And Satan doesn't want you to know that. और शैतान नहीं चाहता आपको ये पता लग जाए। Say, I have authority. बोले मेरे पास अधिकार है। Say it as if you mean it. Say, I have authority. ऐसे बोले जैसे पूरे दिल से मैं जानते हैं इस बात को कि मेरे पास अधिकार है। But just knowing that you have authority is not enough. लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि आपके पास अधिकार है ये काफी। You will have to exercise the authority. इस अधिकार को इस्तेमाल करना सीखना है। You will have to exercise the authority. इस अधिकार का इस्तेमाल करना है। Imagine there is a policeman कल्पना करें एक पुलिस वाला है and he is given responsibility to guard a bank. और उसको जिम्मेदारी मिली कि वो बैंक की सुरक्षा करेगा। And the government has given him authority. और सरकार ने उसको अधिकार दिया। And thief come. और चोर आया, They robbed the bank. बैंक में चोरी की, They killed some people. कुछ लोगों को मार दिया। This man does nothing. इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया And they went away. और वो लोग चले गए। And then he calls his headquarters. और फिर अपने हेडक्वार्टर में कॉल करते हैं He said, why didn't you do anything? और बोला कि अरे आपने कुछ किया क्यों नहीं। Is that right? तो ये सही होगा। They will say, we appointed you. वो कहेंगे हमने आपको नियुक्त We किया, gave you the authority. आपको अधिकार दे Why didn't you do anything? आपने क्यों नहीं किया कुछ। When you move, जब आप कुछ करते हैं heaven moves. स्वर्ग भी साथ में कुछ करता है। When you are silent, जब आप चुप हैं heaven is silent. स्वर्ग भी चुप है। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, whatsoever you bind on the earth, the heaven will bind it. जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा स्वर्ग भी उसको बांध देगा। You are the legal representative of the kingdom of God. आप स्वर्ग के राज्य के कानूनी प्रतिनिधि हैं। Amen. आमीन। You cannot say, God, when will you do it? आप ये नहीं कह सकते प्रभु आप कब करोगे। Most believers ज्यादातर विश्वासी have just learned to beg before God and not exercise their authority. सिर्फ ये सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने आके भीख कैसे मांगनी है, गिड़गिड़ाना कैसे है, लेकिन अपने अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं सीखते। We have to learn to exercise our authority. हमें ये सीखना है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें।
Amen? आमेन। Is there anybody of you that something was happening to you and it kept happening and you thought it will end and then it kept happening and it kept happening until you realize, what am I doing? क्या यहाँ पर कोई है जिसके साथ कुछ होना शुरू हुआ और आपको लगा अपने आप हट जाएगा, दूर हो जाएगा, लेकिन वो होता रहा, आपने कुछ नहीं किया उसका, जब तक आपने ध्यान नहीं दिया। Let me give you a personal testimony. I've acted stupid many times, so I'm teaching you from my failures. मैं खुद की कहानी बताता हूँ क्योंकि मैंने भी कई बार गलतियाँ की हैं और अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ। So one time, एक बार, one day I got up, एक दिन मैं उठा, I had a little bit of cough. थोड़ा खांसी हो रही थी मुझे, I just ignored it. मैंने नज़रअंदाज कर दिया। Then I saw in the evening it increased. फिर मैंने देखा शाम को वो बढ़ गई, I ignored. मैंने नज़रअंदाज It's किया। just a cough, it will go away. खांसी है, चले जाएगी अपने आप। Just drink ginger tea. जिंजर टी पिया। I didn't know it was an attack against my life. मुझे नहीं पता था मेरे जीवन के विरोध में वो हमला है। I want you to start seeing every sickness as an attack against मैं you. चाहता हूं कि आप हर एक बीमारी को आपके जीवन के विरोध में हमले की तरह देखो। You cannot be casual about the symptoms the enemy sends against you. जो लक्षण आपके शरीर में आते हैं उनको हल्का मत समझो। So one day became 3 days and I thought it is going to go away and it became a week and it became a month. एक दिन के 3 दिन हो गए, मुझे लगा चले जाएगी, हफ्ता हो गया और करते करते महीना हो गया। And it became so bad और वो इतना खराब हो गया that I wasn't able to confess the word anymore because I was continuously coughing. कि मैं वचन भी घोषणा नहीं कर पा रहा था क्योंकि निरंतर मुझे खांसी आने लगी। My ribs used to pain. They became so sore by coughing all night. मेरी पसलियों में दर्द होने लगा खांस खांस कर रात भर। 1 month became 2 months. 1 महीना 2 महीने बन गए, 2 months became 3 months. 2 महीने 3 महीने बन गए, And now और अब it was in torment. I was in agony अब मैं सताव में था because my chest, my ribs were paining so bad. क्योंकि मेरी चेस्ट में, मेरी छाती में, मेरी पसलियों में बहुत दर्द हो रहा था। I didn't know what to do. मुझे नहीं पता था क्या करूं। I went to doctor. मैं डॉक्टर के पास गया। They said it's a tropical allergy. डॉक्टर ने कहा ये ट्रॉपिकल एलर्जी है, Start taking nebulizer. नेबुलाइजर लो। Didn't work. काम नहीं करा, Nothing worked कुछ काम नहीं करा, until I went to my roof जब तक मैं अपने घर की छत पे ना गया and I became angry at devil. और मैं शैतान पर गुस्सा हो गया जाकर। I became angry at him. मैं गुस्से से भर गया उस पर And on my roof, I began to shout on the top of my और voice. अपनी छत पर मैं अपनी आवाज ऊंची करके चिल्लाने लगा जितना हो सकता था। I said, Satan, take your dirty hands off my body. मैं कहने लगा शैतान अपने गंदे हाथ मेरे शरीर से हटा। Nothing was happening in my life for 3 months, and within 30 minutes, all those symptoms went away. 3 महीने से मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा था और 30 मिनट के अंदर वो सारे लक्षण चले गए। Do you know God has given us the ability to be angry? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमें क्रोध करने की क्षमता दी है। Anger is not bad if you release it on Satan and his demons. और वो क्रोध बुरा नहीं है अगर आप उसको शैतान और दुष्ट आत्मा पर खोलते हैं तो। Do you know God gets angry? आप जानते हैं परमेश्वर Do गुस्सा you know होता है। Jesus got angry? आपको पता है यीशु गुस्सा And the हुआ। Bible says Jesus is sinless. और बाइबल कहती है यीशु बिना पाप के था। Bible says be angry and do not sin. बाइबल कहती है क्रोधित हो मगर पाप मत करो। If you will not be angry at that cancer, if you'll not be angry at that symptom that devil is trying to bring in your body, it's not going to leave you. अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा उस कैंसर पे, उस बीमारी के लक्षण पे जो आपके शरीर पर नजर आ रहा है, तो आपको इसे छोड़ेगा नहीं। If you're not angry at how the enemy is destroying your business, if you're not angry at how the enemy is trying to destroy your kids, he will not go. अगर आप गुस्सा नहीं होंगे कैसे वो आपके व्यवसाय को खराब करना चाहता है, कैसे आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहता है, तो वो जाएगा नहीं। We have to develop spiritual resistance to the enemy. हमें आत्मिक बल सीखना है कि हम दुश्मन का सामना कर पाएं। Amen. Devil is not a decent fellow. शैतान सभ्य व्यक्ति नहीं है। He will not go because you request him, dear devil, would you please go? वो इसलिए नहीं जाएगा कि आपने विनती निवेदन किया था, प्रिय शैतान आप प्लीज चले जाएं। He has to be kicked out by force. उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता I है। said he will have to be kicked out by force. मैंने कहा उसको जबरदस्ती लात मारकर भगाया जाता है। If somebody comes to your house अगर कोई आपके घर में आता है
And you open the door, आप दरवाजा say, खोलते yes, who are you? हैं, बोलते हैं आप कौन है, And they push you and come and sit on the sofa. वो आपको धक्का मारता है कि सोफे पे बैठ जाते हैं. What will you do? क्या करोगे? You say, please, प्लीज चले जाइए. sir, श्रीमान, God, प्रभु, what will you do? क्या करेंगे? What will you do? क्या करेंगे आप? You'll force them out उनको धक्का मार कर निकाल देंगे, because you will tell him, क्योंकि आप बताएंगे this is not your house. ये तुम्हारा घर नहीं है. When demons try to enter in your house, do you know this is your house? जब दुष्ट आत्माएं आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, आप जानती हैं, When they try to bring a symptom, कोई लक्षण लाने की कोशिश don't be करती है, casual about it. तो उसको हल्का मत लो, Don't be casual about it. उसको हल्का मत लो. Jesus said in John 10:10, Satan has come to steal, to kill, and to destroy. He only has one mandate, and that is to steal, to kill, and to destroy. यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है. उसका एक ही कारण, एक ही मकसद है आने का, चोरी, हत्या और नाश करना. Treat no symptom as small or big. You take authority. The moment you feel any symptom of any sickness is trying to enter your body, just become vigilant and say, devil, no, in the name of Jesus. This is my body. I do not allow you to afflict me in Jesus' name. कभी भी किसी भी लक्षण को छोटा या मामूली मत समझना. शैतान को डांटना, उसको अधिकार से कहना, शरीर, मेरे शरीर को छोड़कर निकल शैतान, ये मेरा शरीर है, तेरा कोई अधिकार नहीं. Amen. The quicker you act, hear this carefully. The quicker you act, the sooner that symptom will go. ध्यान से सुनिएगा, जितना जल्दी आप उस लक्षण के विरोध में आएंगे, उतना जल्दी वो आपको छोड़ के भाग जाएगा. If you don't act, अगर कुछ नहीं करेंगे उसका, it will keep on increasing. तो वो बढ़ता जाएगा. Amen. We are people of authority. Say, I have authority. हम अधिकार के लोग हैं. बोले, मेरे पास अधिकार है. And I didn't tell you why I went to the roof, because when I was praying, और मैंने आपसे नहीं कहा, मैं छत पर बताया कि मैं छत पर क्यों गया था. जब मैं प्रार्थना कर रहा था, and I saw Lord Jesus Christ with a rod in his hand, और मैंने प्रभु यीशु को अपने उनके हाथ में एक राजदंड लिए हुए and देखा. I saw he was kind of very strict. I've never seen him so strict. और वो थोड़ा स्ट्रिक्ट. डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए आई हैव ऑर्डर्ड सम इंटरेस्टिंग फाइंड्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट. आई गॉट दिस वॉल माउंटेड कटलरी रैक. डेली टूल्स एक जगह, इजीली एक्सेसिबल एंड द किचन फील्स मोर ऑर्गेनाइज्ड. तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फाइंड्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट. आपको सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा, कमेंट्स में बताना जरूर. स्ट्रिक्टली मुझसे बात कर रहे थे. मैंने कभी उनको इतना स्ट्रिक्ट नहीं देखा. And he said, why didn't you use the authority I have given you? और उन्होंने कहा, क्यों तुमने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जो मैंने तुम्हें दिया था. And he spoke a scripture to me which I had not known at that time. और उन्होंने एक वचन मुझसे कहा जो मैंने उस समय नहीं जाना था. And I want to put Psalm 110 verse 2. भजन 110 उसकी दूसरी He आयत. said, stretch forth your rod out of Zion. उसने कहा, Rule in the midst of your enemies. तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा. तू अपने दुश्मनों के बीच में शासन कर. Rod represents authority. वो राजदंड अधिकार को दर्शाता है. And God is telling you, stretch forth your rod. परमेश्वर आपसे कह रहा है, अपने राजदंड को Stretch बढ़ा, forth your authority. अपने अधिकार को बढ़ा. Tell that wicked thing to get out of your body. उस दुष्ट चीज से बोल, अपने तुम्हारे शरीर को छोड़कर जाए. Tell that work of darkness to stop in Jesus' name. उस अंधकार के काम को कहे कि वो तेरे शरीर को छोड़ जाए. You stretch forth your rod. तू अपने राजदंड को बढ़ा. You rule in the midst of your enemies. तू राज्य कर अपने दुश्मनों के बीच में. Amen. आमेन. You do it. तू ऐसा कर. Say rule. बोले राज्य कर. Authority is given to rule. अधिकार राज्य करने के लिए दिया जाता है. Rule. राज्य करो. Cannot be casual with devil. आप शैतान को हल्का ना ले. उसकी Put दुष्ट. James 4:7. याकूब 4 उसका 7. Amen.
Therefore, submit to God, इसीलिए परमेश्वर के अधीन समर्पित हो resist the devil, और शैतान का सामना करो। and he will. Does the Bible say he might? क्या बाइबल कहती है शायद वो छोड़ के चला जाए? No, the Bible says he will. बाइबल कहती है वो भाग निकलेगा। But when will he flee? कब भाग निकलेगा? When your life is surrendered to God जब- and you resist the devil. जब आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित है और आप शैतान का सामना करते हैं। And you know this word resist, if you see it in the original manuscript, और ये जो सामना करना शब्द है मूल भाषा में अगर आप जानोगे, it doesn't mean शैतान जी. वो ऐसा नहीं है विनती करना डियर चले जाइए, please. प्लीज कैन यू गो अवे। No, resist means सामना करने का मतलब to है wear the armor and be ready for a fierce battle. लड़ाई के लिए कवच पहनकर तैयार हो जाना एक भीषण युद्ध के लिए। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? See, what happens is many people, when they don't do anything about it, क्या होता है ना, बहुत से लोग जब कुछ नहीं करते उन लक्षणों any का, symptom that they get, कोई भी लक्षण आता है and they don't do anything और about वो कुछ नहीं करते उसका, it, after a while, कुछ समय बाद they accept it. उसको ग्रहण कर लेते हैं, They accept it. उसको गले लगा लेते They'll हैं, say, oh, बोलते हैं no, no, Pastor, not a big deal. अरे पास से बड़ी बात थोड़ी है, Just a little bit of itching थोड़ी सी every खुजली होती spring. है, हर Pastor, not a big deal. बड़ी बात नहीं है, Just a little bit of fluctuation in the blood sugar. बस थोड़ा सा शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, बस Not a big deal, Pastor. बड़ी बात नहीं है पास्टर, Just my knees pain. बस घुटनों में थोड़ा दर्द है, बस It is a big deal. बड़ी बात है वो। The enemy is trying to attack your body. दुश्मन आपके शरीर पर हमला कर रहा है, Take it a big deal. उसको बड़ी बात समझो। Say, Satan, no, this is the house of God. This is the temple of the Holy Spirit, and I'll not let you violate it. बोलो शैतान नहीं, ये परमेश्वर का घर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं तुझे इसमें प्रवेश करने की जगह नहीं देता। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? If you exercise authority, you are going to live long. Your children are going to live long. Their children are going to live long. अगर आप अधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो आप लंबी आयु जिएंगे, आपके बच्चे लंबी आयु जिएंगे और उनके बच्चे लंबी आयु जिएंगे। Amen. आमेन। Cannot live with this sovereignty mindset. If God wants to do it, God will do it. इस मानसिकता के साथ नहीं जी सकते कि परमेश्वर को जो करना है वो करेगा। No. नहीं, God has given us authority. परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। Think about this. If God was doing everything, why is He telling us to resist? इसके बारे में सोचें, अगर परमेश्वर को ही सब कुछ करना है तो वो हमें क्यों कह रहा है शैतान का सामना करो? And if everything is allowed by God and everything is orchestrated by God, when you resist it, that means you are resisting the plan of God. और अगर सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया कि सब कुछ परमेश्वर ने ही तय किया कि ऐसा ही होगा, तो अगर वो कह रहा है सामना करो और जब आप सामना करते हो तो आप परमेश्वर की योजना के खिलाफ जा रहे हो। Why would you want to resist the will of God? क्यों परमेश्वर की योजना, उसकी इच्छा के खिलाफ जा रहे हो? Why is God telling you resist it? Because He says, this is not my will for you. तो फिर- Resist it, son. This is not my will for you. Resist it, daughter, because this is not my will for you. तो फिर क्यों परमेश्वर कहता है सामना करो, क्योंकि ये उसकी इच्छा नहीं है आपके लिए। वो कहता है बेटा ये मेरी इच्छा नहीं है तेरे लिए, इसका सामना कर। वो कहता है बेटी ये मेरी इच्छा नहीं है तेरे लिए, सामना कर इसका। And put that scripture again. The Bible says, बाइबल कहती है resist him and he will flee away from you, not from God. और वो बाइबल कहती है उसका सामना करो तो वो भाग निकलेगा तुम्हारे पास से, परमेश्वर के पास से नहीं। Because devil knows he's already been whipped by Jesus. क्योंकि शैतान को पता है कि यीशु ने पहले उसकी हालत खराब कर दी थी, He knows he's defeated. उसको पता है वो हारा हुआ है, So he's not trying to fight with God, तो वो परमेश्वर से लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा, but he's trying to come against you. पर आपके विरोध में आ रहा है। Now God says, अब परमेश्वर कहता है I made you victorious. मैंने तुझे जय दे दी है, Resist him. उसका सामना कर। When you resist him, जब तुम सामना करते हो he will flee from you. तो वो भाग निकलेगा। As let me tell you something very simple. एक साधारण सी बात, If devil is not fleeing from you, अगर शैतान आपको छोड़कर नहीं भाग रहा, that means you're not resisting. इसका मतलब आप उसका सामना नहीं कर रहे। As simple as that. सिंपल सी बात है। Have you heard of persistent cough? That's what doctor told me. It's a persistent cough. लगातार बने रहने वाली खांसी, डॉक्टर ने ये कहा था मुझे। You know persistent cough? It's persistent. वो लगातार ढिठाई से बनी रहती है। Persistent faith is the answer of persistent sicknesses.
लगातार ढिठाई से बने रहने वाला विश्वास उत्तर है ढिठाई से बने रहने वाली You बीमारी have के to लिए। become persistent in your faith. You have to become persistent in your authority. आपको अपने विश्वास में, अपने अधिकार में ढीठ होना पड़ेगा, उसमें लगातार बने रहना पड़ेगा। Amen. Are you guys with me? मेरे साथ हैं? This false teaching ये झूठी शिक्षाएं has sent so many Christians in grave before their time. इन्होंने बहुत से मसीह को कब्र में डाल दिया है उनके समय से पहले, Because they thought क्योंकि उनको लगा everything is happening by the will of God. सब कुछ परमेश्वर की So मर्जी से if हो रहा I'm है। sick, I'm sick because God allowed it. तो अगर मैं बीमार हूं तो इसलिए क्योंकि प्रभु ने उसकी इच्छा थी, उसने ऐसा करने दिया, Because something good will come out of it. क्योंकि इसमें से कुछ तो अच्छा होगा। Yeah. नहीं, You know, one time I went to meet a man एक बार मैं एक व्यक्ति से मिलने गया who's a preacher. जो प्रचारक है, And please understand my heart. मेरे दिल को समझेगा। There are genuine prophets in the body of Christ. मसीह की देह में सच्चे भविष्यवक्ता है, But there are many who call themselves prophets लेकिन- but are not prophets. लेकिन ऐसे बहुत से लोग भी हैं जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं पर वो नहीं है। And gullible Christians would swallow everything they say in the name of prophecy. और ना समझ मसीह सब कुछ खा लेंगे भविष्यवाणी के नाम में, जो कुछ उनको दिया जाएगा। And wrong prophecies have killed so many Christians. गलत भविष्यवाणियों ने बहुत से मसीहों को मार दिया है। So I went to him and he prayed for me and he said, "Young man, मैं उनके पास गया, उन्होंने प्रार्थना की, बोला जवान, I'm seeing you're in ICU and your body is covered with tubes." मैं देख रहा हूँ तुम आईसीयू में, तुम्हारे शरीर में ट्यूब लगी हुई हैं। Who was that speaking? कौन बात कर रहा था ये? Devil. not शैतान God. बात कर रहा था, परमेश्वर नहीं। You should know who's the source. आपको पता होना चाहिए स्रोत कौन है पीछे। And he said, और उसने कहा "You will have a terrible sickness. I see this." And then that's it. बुरी बीमारी होगी और मैं ये देख रहा हूँ, बस यही कहा। I said, "Thank you, sir." मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। I got up. उठा मैं वहां से, I came out of this बाहर आया house. उस जगह से। I said, "I rebuke it in the name of मैंने Jesus." कहा मैं इसको रद्द करता हूँ यीशु के नाम में, In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I refuse every word that this man spoke against me हर- and my health. हर एक शब्द जो इस व्यक्ति ने मेरे और मेरे स्वास्थ्य के खिलाफ बोला, उसका मैं रद्द करता हूँ इस समय, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। None of his word will come to pass. उसका कोई भी वचन मेरे जीवन में फल नहीं लाएगा, कोई भी वचन पूरा नहीं होगा। And it's been years, I don't know, 8-9 years, और कितने साल Nothing बीत happened. गए, कुछ नहीं हुआ and nothing will happen. और कुछ होगा भी नहीं। But my friend लेकिन मेरा एक दोस्त went to the same guy, उसी व्यक्ति के पास गया, same guy, उसी व्यक्ति के पास, and he said, उसने कहा "I'm seeing मैं देख रहा हूँ that your bones are breaking." तुम्हारी हड्डी टूट रही है। And he received it. उसने ग्रहण कर लिया। Next day he was going in his Activa. अगले दिन एक्टिवा में जा रहा था, Bam! गिरा, Bones broken. हड्डी टूट गई। You have the authority to receive something in your life, and you have the authority to forbid it in your life. आपके पास अधिकार है अपनी जिंदगी में होने के लिए, कुछ ग्रहण करें, उसको अनुमति दें, या फिर उसको रद्द करें, अनुमति ना दें, आपके साथ ऐसा हो। We cannot remain gullible baby Christians. We have to grow up. हम ना समझ बच्चे ईसाई नहीं रह सकते, हमें बढ़ना पड़ेगा, मजबूत होना होगा। You know why? पता है क्यों? बोल दो। क्योंकि अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई। Amen. But we are victorious sons and daughters of Lord Jesus Christ. लेकिन हम प्रभु यीशु नासरी के जयवंत बेटे और बेटियां हैं। God, if it is your will, please heal him. We'll kill you. ओ प्रभु जी, अगर आपकी इच्छा है उसको चंगा कर दो, मर जाओगे ऐसे। That's the worst prayer you can सबसे pray. खराब प्रार्थना है। If you don't know the will of God, search the scriptures and find his will. अगर प्रभु की इच्छा नहीं पता तो वचन में खोजो और पता लगाओ। Amen. आमेन। Apostle John says, Praise we John. have this confidence that when we ask anything according to his will, he hears us. प्रेरित यूहन्ना कहते हैं हमें यह साहस है, जब उसकी इच्छा के अनुसार हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें देता है, हमें सुनता है। Amen. Jesus is God's will in action.
यीशु परमेश्वर की इच्छा है दिखाई When you देते हुए read the रूप में। Gospels, you see the will of the Father. What was Jesus doing? जब आप He was सुसमाचार- going in every city and every town, healing the people, casting out demons, cleansing the lepers, raising the dead. That is the will of God for you. जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं, आप देखते हैं पिता की इच्छा यीशु के जीवन के द्वारा पूरी होती हुई, वो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, ये उसकी इच्छा है। So please understand that. इसलिए समझिए, You can allow आप अनुमति दे सकते हो or you cannot allow. या फिर अनुमति नहीं दे सकते कि कुछ हो। It's not God. परमेश्वर नहीं है, God gave you His authority. परमेश्वर ने आपको अपना अधिकार दिया है। Yeah, brother, I know God doesn't send sickness, but God allows, brother. हाँ हाँ भाई, मैं जानता हूँ परमेश्वर बीमारी भेजता नहीं, लेकिन उसने अनुमति दी है भाई। What does that even mean? इसका मतलब भी क्या हुआ? He has allowed everything. फिर तो उसने सब कुछ अनुमति दी है। Your theology shouldn't come from book of Job. Your theology should come. You are a born again child of God. आपका ईश्वरीय ज्ञान अयूब की किताब से नहीं आना चाहिए। आप एक नया जन्म पाए हुए परमेश्वर की संतान। Ayub didn't have the name of Jesus. Ayub was not baptized in the Holy Spirit. Ayub didn't have the authority to stand against Satan. But you and I have the name of Jesus. We have the blood of Jesus. We have the Holy Spirit. And we have the authority. अयूब के पास यीशु का नाम नहीं था, उसने नया जन्म नहीं पाया, पवित्र आत्मा नहीं था, उसके पास अधिकार नहीं था। लेकिन आपके और मेरे पास यीशु का नाम है, उसका अधिकार है, उसका लहू है, उसकी आत्मा है। Amen. आमेन। Luke 10:19. We'll read it from the लूका Passion Translation. 10:19 पैशन ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे। Are you alive? जीवित हैं? Now you understand that I have imparted to you my authority. Say authority. अब तुम समझते हो कि मैंने तुम्हें अपना अधिकार दे दिया है। बोले अधिकार। To trample over Satan's kingdom. शैतान के राज्य को कुचलने के लिए। To trample. कुचलने के लिए। What does trample mean? कुचलने का मतलब क्या हुआ? Have you trampled a cockroach before? कभी कॉकरोच को कुचला है, मसला है? No, I mean like sisters, I'm not talking to you right now. बहनों से बात नहीं कर रहा मैं इस समय। Have you trampled any insect? किसी कीड़े को You trample insects. Has anyone trampled an elephant? आप कीड़ों को मसलते हैं। किसी ने कभी हाथी को मसला है? God says, my authority will empower you that you will trample Satan's kingdom. परमेश्वर कहता है कि मेरा अधिकार तुम्हें बल दे देता है जो ताकि तुम शैतान के पूरे राज्य को कुचल सको। You will trample upon every demon before you. तुम अपने सामने आए हर एक दुष्ट आत्मा को कुचलोगे। Did Jesus say, I will do it for you? क्या यीशु ने कहा मैं कुचलूंगा? He said, who will do it? कौन करेगा? उसने कहा You. तुम कुछ। That means if you don't do it, इसका मतलब अगर तुम नहीं कुचलोगे you limit God. तो तुम परमेश्वर को Hear this सीमित करोगे। carefully. ध्यान से सुनना। Write it down if you're writing it अगर down. लिख रहे हो तो लिख लो। When a believer does not use his authority, that believer limits God. जब एक विश्वासी अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, वो परमेश्वर को सीमित करता है। In every area in your life where you are not exercising authority, you are limiting the hand of God. जीवन के हर एक क्षेत्र में जहां पर आप अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर को सीमित करते हैं। I told you in the beginning, मैंने the शुरुआत में one कहा था। who has no authority and the one who has authority but does nothing about it, both will have the same result. मैंने बताया था वो जिसके पास अधिकार नहीं है या वो जिसके पास अधिकार है और इस्तेमाल नहीं करता, दोनों का एक ही फल होगा। Amen? Nobody likes sickness. किसी को बीमारी पसंद नहीं। Anybody here likes sickness? कोई है यहाँ पर जिसको बीमारी पसंद है? Many sicknesses prevail in our life because of our inability to quickly resist it in Jesus' name. बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में इसलिए आ पाती है क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं देते उस पर। जब वो आती है उसी समय उसका विरोध नहीं करते।
whenever the symptom come, either you are quick to prevail over that sickness, or if you do nothing, that sickness will prevail over. जब कोई लक्षण आता है तो या तो आप जल्दी से उस पर हावी होकर उसको निकाल दे अपने जीवन से, नहीं तो वो आप पर हावी होता है. See, every sickness is an attack from the enemy. हर एक बीमारी दुश्मन का अटैक है आपके जीवन पे. Amen. Every time I have been sick, it was always because I became casual about my authority. जब कभी मैं बीमार पड़ा वो हमेशा इसी वजह से था कि मैं अपने अधिकार को लेकर हल्का कर दिया. मैंने उसके बारे में ध्यान नहीं दिया. Many times we depend upon our immune system too much. कई बार हम अपनी शरीर की सुरक्षा प्रणाली पर बहुत निर्भर हो जाते हैं. अरे जुकाम में 3 दिन बाद तो ठीक हो ही जाना है वैसे भी. It's this cold and cough after 3 days will be healed. No. नहीं. We have a spiritual immunity. आत्मिक सुरक्षा है हमारे. We have a spiritual immunity. आत्मिक रोग विरोधी सुरक्षा है हमारे. Amen. We have to build spiritual resistance against the enemy. और आत्मिक विरोध हमें अपने अंदर बढ़ाना है कि हम दुश्मन का सामना करें. You know, one morning I had to come and preach the word, and morning I got up and my voice was completely gone. एक सुबह मुझे उठकर आकर प्रचार करना था और जब मैं सुबह उठा मेरी आवाज बिल्कुल चली गई. And my wife Monica, she saw me. I said, no, I'm not gonna. And I came and there was no voice, but I got angry at the devil and I just kept declaring the word. It was like I was doing, there's no voice, but I kept declaring it, and within 15 minutes I became absolutely normal. The enemy will push and see how long he can push you. पास्टर मोनिका ने इस बात को होते हुए देखा, लेकिन पास्टर अंकित ने कहा नहीं, मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा. और वो आए और वो निरंतर वचन की घोषणा करते रहे. बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, बिल्कुल हवा की तरह आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को घोषणा करते रहे. और वो कह रहे हैं कि दुश्मन आपको धक्का देगा और धकेल कर देखेगा कि आप कब तक नहीं रोकते. He wants to see how long, how far can he push you, and still as long as you don't resist him. वो देखना चाहता है कि वो आपको कब तक धकेलता जा सकता है जब तक आप उसका सामना नहीं करते. So don't allow him to push you until you see there is a cliff behind you, and then you start to resist him. तो उसको मौका मत दो कि आपको धकेलता चला जाए जब तक पीछे खाई ना आ जाए तब तक. Resist him instantly whenever you see devil is coming against your health, devil is coming against your business, devil is coming against your children. उसी समय शैतान का सामना करो जब आप देखते हो कि शैतान आपके स्वास्थ्य के, आपके व्यवसाय, आपके बच्चों, किसी भी बात के विरोध में आ रहा है. उसी समय सामना करो. Amen. Put 1 Peter 5:8. पहला पत्रस 5 उसका 8. Do you know that Satan isn't that powerful that whatever he wants to do he can do? क्या आपको पता है शैतान इतना ताकतवर नहीं कि जो चाहे वो कर सकता है. Every time he has done something, somewhere or the other, we came in agreement with him. जब कभी शैतान ने कुछ किया, कहीं ना कहीं से हम उसके साथ पहले सहमत हुए तभी वो कर पाया. Read the scripture. इस वचन को Be पढ़ो. sober, सचेत रहो, be vigilant, जागते रहो, because your adversary, the devil, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, see, he's God's adversary. वो परमेश्वर का विरोधी है. But because God made you in his image, he hates you. लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, वो आपसे नफरत So करता now है. he's now your adversary. अब वो आपका विरोधी है. Your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. That means he cannot devour everyone that he wants to devour. इसका मतलब जिस किसी को फाड़ खाना चाहे फाड़ खाए, उसकी बस की बात नहीं है ये. He has to seek. उसको ढूंढने पड़ते हैं लोग. Is this person, will this person allow me? क्या ये मुझे अनुमति देगा? Will this person? क्या ये व्यक्ति देगा अनुमति? He goes to one believer and that believer says, in the name, no, wrong house, wrong वो house. एक विश्वासी के पास जाता है और वो विश्वासी कहता है यीशु के नाम में. वो कहता नहीं, इस वाली गलत घर में आ गया, गलत घर में आ गया. Amen. आमेन. But then he gives a pinto and प्रभु ऐसा क्यों हमारे साथ करो? फिर Found the house. फिर Found the house. एक दूसरे विश्वासी को छेड़ता बोलता है
प्रभु लॉर्ड व्हाई यू डूइंग दिस टू मी? वो कहता आ जाओ भाई, घर मिल गया, आ जाओ, Let's have a party. चलो पार्टी करते हैं इसके। Found a house. घर मिल गया एक। You know, one time a man of God, amazing man of God called Smith Wigglesworth, एक बार परमेश्वर के अद्भुत जन स्मिथ विगलसवर्थ, he was standing on the bus station वो बस स्टेशन पे खड़े थे and there was a lady by his side. और उनके साइड पे एक महिला खड़ी थी। And he saw as she was coming, as she was coming towards him, there was a dog following her. और उन्होंने देखा जब वो उनके पास आ रही थी तो एक कुत्ता उसके पीछे पीछे आ रहा था। And she said, "Shh, go away." और कहते चले यहाँ से, And he was still going, और फिर भी आ रहा था वो। She said, go. जाओ, Whatever the name was, जो भी कुत्ते का नाम था, Tommy go. टॉमी चले जाओ। Tommy was not going. And then when the bus was about to come, she got frustrated and she stomped her feet and she said, "Go!" And when she did that, the tail of the dog went between his legs and he ran away. और जब वो नहीं जा रहा था और बस आ रही थी, उस महिला को जाना था, उसने जोर से डांटते हुए पांव पटकते कहा जा यहाँ से, और कुत्ते ने दुम दबाई और भाग गया घर। And suddenly Smith Wigglesworth screamed, "That's how you treat the devil and he will flee from you. That's how you do it with him." और स्मिथ विगलसवर्थ चिल्लाकर कहने लगे यही व्यवहार शैतान के साथ करो तो तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। That's how you talk to cancers. That's how you talk to migraines. That's how you talk to lung disorders. That's how you talk to problems. That's how you tell them, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, get out of my life. ऐसे ही कैंसर से बात की जाती है, ऐसे ही माइग्रेन से, फेफड़ों की समस्या से, ऐसे ही हर बीमारी से बात की जाती है। यीशु के नाम में छोड़ और निकल जा। Amen. The entire universe responds to the sound of sons. सारी सृष्टि पुत्रों की आवाज, पुत्रों की ध्वनि को जवाब देती The है। Bible says the creation is groaning. बाइबल कहती है सृष्टि, When will the sons of God rise up and set us free from this bondage? बाइबल कह रही है कि सृष्टि कर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्र उठ खड़े होंगे और हमें आजाद करेंगे इस सड़ाव से। Come on, turn to your neighbor and say, "Arise and shine, our time has come." अपने पड़ोसी से कहो उठो और प्रकाशमान हो जाओ, तुम्हारा समय आ गया है। Amen. We are not victims. हम बेचारे नहीं हैं, We are people with authority. हम अधिकार पाए हुए लोग We हैं, are people with power. हम शक्ति पाए हुए लोग हैं। Some people are laughing. कुछ लोग हंस रहे हैं इन बातों पे, It's okay. कोई बात नहीं। But if you want to laugh all your life, learn to use the authority. अगर जीवन भर हंसना चाहते हो तो अधिकार का इस्तेमाल करना सीखो। Yeah. Ben, can you stand up? Yeah. Please come. Come, quickly come. Come. Give me a mic. एक माइक दीजिए जल्दी। Yeah. Okay. So, when I went to her house, जब मैं उनके घर गया था, she could not step in a car वो एक गाड़ी में बैठ नहीं सकती थी, because the moment she would step in a car, she would puke. For how long? कितने साल? बहुत टाइम हो गया, 5 मतलब बैठ ही नहीं पाती थी मैं बिल्कुल कितने भी। साल से? 6 to 7 years। 6 to 7 years. She'll 6-7 sit साल। inside a car and she'll puke. So she stopped going out of her house. जैसे ही वो गाड़ी में बैठती उनको उल्टी आने लगती थी, वो उल्टी करने लगती हैं और वो गाड़ी में बैठना ही छोड़ दिया उन्होंने। What did she do? क्या किया उन्होंने? She accepted it. उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। That night we told her this is the last day. उस रात उनसे हमने कहा आज आखिरी है, आज की दिन आखिरी है। From tomorrow, कल से you will sit in the car and come to church. तुम गाड़ी में बैठोगे, कलीसिया आओगे। Tell us what happened next day. क्या हुआ अगले दिन टाइम? सच में मुझे कार देखते ही वॉमिटिंग हो जाती थी, मुझे हैंगओवर हो जाता था, मुझे हेडेक होता था और स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा आती थी, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हूँ। तो भैया एक दिन घर पर आए और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं अब कल से चर्च आओगे तो कार में ही आओगे। मैंने बोला कि अच्छा ट्राई करूँगी। तो मैंने सोचा ट्राई करूँगी, बैठ तो गई। फिर मैंने सोचा कि प्रभु कहीं वॉमिटिंग सच में है, लेकिन हाँ मैंने सोच लिया था भैया ने मुझे बोला है तो उस अथॉरिटी के साथ ही बैठना है कि मुझे वॉमिटिंग नहीं होगी, और मुझे सच में वॉमिटिंग नहीं हुई। उस दिन के बाद बहुत ही आराम से। कितने साल हो गए?
भैया तब से अभी टाइम तक? हो गया, कितना? याद ही नहीं 6 साल? मुझे। हाँ, इतना हो 5 years हो चुके For हैं। 5 years now, she comes to church every day sitting in a car. 5 साल से जब वो कलीसिया आ रही हैं, गाड़ी में बैठ कर आ रही हैं, कोई उल्टी नहीं। Do not let devils set limitations in your life. शैतान को अपने जीवन पर सीमाएं लगाने मत दो। He will not tell you what you will eat, what you will not eat, where you will go, where you will not go. वो आपको ये बताने का अधिकारी नहीं है कि आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं, कहाँ जा सकते हो, कहाँ नहीं। Oh, हमें पीनट से एलर्जी है। अरे चुप करो ये बकवास। Use your authority and eat the peanut in Jesus' name. Stop all the nonsense and start to eat what God has given. Allergy is just a limitation devil has set on your life. एलर्जी सिर्फ एक सीमा है जो शैतान ने आपकी जिंदगी पे लगाई है कि तुम ये नहीं कर सकते। You heard the testimony today. आपने आज गवाही सुनी थी? What did that sister do? क्या किया उस बहन ने? She said, God has made all these things for me to enjoy. I will drink milk. I will eat curd. What happened? From that day till today, no more allergy. उसने कहा परमेश्वर ने ये सब चीजें मेरे भले के लिए मेरे लिए बनाई है, तो मैं आज से दूध पी सकती हूँ, दही खा सकती हूँ, कोई एलर्जी नहीं होगी। और कोई एलर्जी नहीं हुई। See, what I'm saying is, if you'll allow devil, he will keep on pushing you to a corner. क्योंकि अगर आप शैतान को करने दोगे तो आपको धकेलते धकेलते कोने में ले जाएगा। अब ग्लूटेन एलर्जी, अब मिल्क की एलर्जी, सोया एलर्जी, ये एलर्जी, वो एलर्जी, वही एलर्जी हो गई पूरी। No, man. जी नहीं, You are people of authority. आप अधिकार वाले लोग हैं। You are people of authority. अधिकार पाए हुए लोग हैं आप। It's very important the tags that you believe about yourself. बहुत महत्वपूर्ण है क्या नाम अपने बारे में आप मानते हैं। See, devil loses his foothold in your life the moment truth is revealed in your life. जिस घड़ी आपके जीवन में सच्चाई सामने आ जाए, शैतान आपकी जिंदगी को छोड़कर भाग जाता है। He will make sure that he'll bind you in lies so that the light of the truth will not shine in your life. वो इस बात का ध्यान रखता है कि आपको झूठों में फंसा कर रखे ताकि परमेश्वर के वचन का सत्य आपके जीवन में ना आए। एक नया लाई बताऊं आपको। हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो बच्चे ही हाइपर एक्टिव होते हैं, और कौन होते हैं? बड़े होते हैं हाइपर एक्टिव। Kids are supposed to be hyperactive. You believe that tag about your sons and daughters, the lie that are spoken on their life? अपने बच्चों के लिए अगर ये झूठ मान लोगे कि हमारे बच्चे ऐसे हैं, ADHD है, उनको ये हुआ है। Are you guys with me? मेरे साथ हैं। If you'll allow, he'll keep pushing you. अगर मौका दोगे तो वो धकेलता जाएगा। Oh, Pastor, ओ पास्टर जी, I have anxiety. वो मुझे ना बड़ी चिंता हो जाती Who told you you have anxiety? है। किसने कहा आपको चिंता होने की परेशानी है? When Adam sinned जब आदम ने पाप किया, and he said, I'm naked, उसने कहा मैं नंगा हूँ। God didn't say, why are you naked? God said, who told you you are naked? परमेश्वर ने ये नहीं कहा क्यों नंगा है, परमेश्वर ने कहा किसने कहा तू नंगा है। What is the source of this information? इस जानकारी का स्रोत क्या Who है? told you you will not live long? किसने आपसे कहा कि आप लंबा नहीं Who जिएंगे? told you you cannot eat this and that? किसने आपसे कहा कि आप ये या वो नहीं खा सकते? Who told you? किसने कहा? You know, one of our friends from Australia, I was just sharing this in Friday service. हमारे एक मित्र ऑस्ट्रेलिया से, जब मैं ये फ्राइडे से उसमें सिखा रहा था उन्हें, He did a very expensive, it's $1,000 per person, personality test. उन्होंने $1000 का, हर एक व्यक्ति का $1000 की फीस का ये पर्सनालिटी टेस्ट है जो उन्होंने करवाया। So he said all the top-notch CEOs and all the top-notch officials, they do it. उन्होंने कहा बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs लोग करते हैं ये टेस्ट अपने ऊपर। So he did it for me, for Pastor Ram, for Pastor Sam, सो कलीसिया के अगुओं के लिए उन्होंने किया, पास्टर्स के लिए and our wives. और हमारी पत्नियों के लिए। And then they come with a conclusion. They told me, you are 99% creative. और फिर हर एक की जो समरी आई, कंक्लूजन आया, वो बताया कि आप 99% रचनात्मक है। That's awesome. बहुत अच्छी बात है। But the bad news is लेकिन इसका बुरा भाग ये है that you are 1% detail. कि आप 1% ध्यान देंगे छोटी छोटी चीजों पर।
That means you will not be able to remember things. इसका मतलब आपको चीजें याद नहीं रहेंगी, You'll not remember details. आपको डिटेल की बातें याद नहीं रहेंगी, It will be hard for you to navigate, to go to places. कठिन होगा आपके लिए कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। ये What is सोचना। this? क्या है ये? Satan is speaking after giving $1,000. शैतान बात कर रहा है $1000 देने के बाद। Because let me tell you what happened. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या I होता है। believed that lie. मैंने वो झूठ मान लिया And I told my wife, और अपनी पत्नी से कहा, and they said that your wife should take care of all the grocery bills, all the electricity bills, everything she should take care. और उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी को ध्यान देना चाहिए, सारे घर के बिल, ग्रोसरी बिल, बिजली का बिल, ये सब उनको चुकाना चाहिए। आपने Not only I believed it, I started to sing that song. मैंने इतना ही नहीं कि मैंने वो मान लिया, मैं वो गाना गाने लगा अपने जीवन I'm में। telling everybody, I have 1% detail. मैं हर एक को बता रहा हूँ, मैं 1% डिटेल हूँ, 1% छोटी छोटी बातें याद रहती हैं मुझे। I'm telling you what one lie can do in your मैं life. आपको बता रहा हूँ एक झूठ आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा सकता है। Within few days, कुछ ही दिनों में I started to forget everything. मैं सब कुछ भूलने लग गया। My wallet, मेरा वॉलेट कहाँ है, I started to forget what day it is, क्या दिन है what आज, time it is, समय क्या हो रहा है, where am I, what is मैं हूँ happening. कहाँ पे, क्या चल रहा है। If I would have gone to doctor, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता he would have given me a fancy name. तो वो एक बढ़िया सा नाम बताता उस बीमारी का। This is the early signs of dyslexia or whatever. ये जो भी ये बीमारी है उसका ये असली जल्दी का साइन है, चिन्ह। That's how devil works. शैतान ऐसे काम करता है। And it happened to that extreme level that I became so frustrated. I cannot live life like this. और इस हद तक मेरे साथ ये होने लगा कि मैं परेशान हो गया कि ऐसे जिंदगी नहीं जी सकता मैं। And I went to God and I said, God, मैंने एक प्रभु के पास गया, मैंने कहा प्रभु what is wrong? क्या दिक्कत है। He said, प्रभु ने कहा, did I tell you you are 1% detail? क्या मैंने तुझसे कहा कि तू 1% डिटेल है। Did my word say you are 1% क्या detail? मेरा वचन कहता है कि तुम 1% डिटेल हो। And the light shone. और प्रकाश हो गया। I said, please मैंने forgive कहा me, Lord. माफ करो पिता, I renounced this lie. मैं इस झूठ को रद्द करता हूं अपनी जिंदगी And he से। gave me a scripture. और उसने मुझे एक वचन दिया, The memory of the righteous is blessed. धर्मी जन की यादगार आशीषित होगी। The memory of the righteous is blessed. धर्मियों की यादगार आशीषित होगी। I said, Satan, I am not 1% detail, I am 100% detail. मैंने कहा शैतान मैं 1% डिटेल नहीं, मैं 100% डिटेल हूँ। Just by agreeing to this truth. सिर्फ इस सच के साथ हाथ मिलाकर सहमत होकर। And Pastor Sam and my leaders are witness. When I'll meet you, next time I'll remember what clothes you were wearing. My memory. See, the enemy is trying to limit us by these lies. God is trying to set us free through His truth. What would you believe? कलीसिया के अगुवे इस बात के गवाह हैं कि अब आप पास्टर से मिलेंगे तो आपको बताएंगे पिछली बार जब मिले थे आपने ये कपड़े पहने हुए थे। शैतान क्या करना चाहता है, वो लगातार आपकी जिंदगी को सीमित करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर लगातार आपकी सीमाओं को खोलना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है। Amen. I was like, foolish me. I mean, like, we want to pay $1,000 to get a lie from an expert when we can get the report of the Lord for free if we would just open it in our house. पहले तो $1000 दें, फिर एक विशेषज्ञ से झूठ सुने जो अपने जिंदगी पे मान लें, उसकी जगह जो वचन में सत्य की रिपोर्ट है उसको अपनी जिंदगी पे लागू करें। You know what did the report, personality report of the word told me? He told me, I am 100% creative and I am 100% detail in Jesus' name. पता है परमेश्वर की वचन की पर्सनालिटी रिपोर्ट ने क्या कहा, मैं 100% रचनात्मक हूं और 100% छोटी छोटी बातों को याद And रखता so हूं। are you. आप भी ऐसे ही हैं। So are you. आप भी ऐसे ही हैं। Oh, Pastor, I'm not that creative. Who told you you are not अरे creative? पास्टर जी मैं इतना क्रिएटिव नहीं हूं, किसने कहा कि तुम नहीं हो। You are made in the image of the Creator. You are creative in Jesus' name. आप सृष्टिकर्ता की छवि उसके स्वरूप में बने हो, आप पूरी तरह सृष्टि करता हो, उसकी तरह रचनात्मक हो। Because you have believed you are not creative. That's why you are not manifesting gift of creativity. क्योंकि आपने ये झूठ मान लिया कि आप रचनात्मक नहीं हैं, इसीलिए वो तोहफा आपके जीवन से काम नहीं कर रहा। Be very careful of the labels that you believe that people give you. बहुत ध्यान दे उन झूठे नामों पर जो लोग आपको देते हैं। I am this. मैं ऐसा हूँ, I am not confident. मुझे I साहस am नहीं not है, like that. मैं वैसा I नहीं am हूँ, this. मैं तो ऐसा हूँ। Isn't that crazy? हैरानी की God's बात नहीं। name is I am. परमेश्वर का नाम है मैं हूँ।
You should start saying, I am powerful. आपको कहना I चाहिए, मैं am शक्तिशाली हूँ, anointed. मैं अभिषिक्त I हूँ, am chosen. मैं चुना I गया हूँ, am born again. मैं नया I जन्मा am हूँ, called by God. मुझे परमेश्वर ने I बुलाया am है, a victorious son and a मैं daughter. जयवंत बेटा हूँ, जयवंत बेटी हूँ. Amen. आमीन. Come on, tell your neighbor. Say, neighbor, अपने पड़ोसी को, it's पड़ोसी, time to use your authority. अधिकार इस्तेमाल करने का समय आ गया है. When God sent Moses to deliver Israelites from Egypt, what did God say? जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा के इजरायलियों को छुड़ाए मिस्र से, तो परमेश्वर ने क्या कहा? He said, what is in your hand? उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? Staff. छड़ी है. Ordinary staff. क्या है छड़ी? Many of us think this authority is very ordinary. बहुत से लोग सोचते हैं ये अधिकार बहुत हल्का है, कुछ नहीं है इसमें. Because we have a habit of going after something that is spectacular. क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कुछ बहुत ही भयंकर सा दिखेगा तो मानेंगे. Jesus said, I gave you my authority. यीशु ने कहा मैंने तुम्हें अपना अधिकार दिया है. कुछ लाइट वाइट दिखाओ आसमान में तब तो माने. Let some light shine and we'll understand what you're saying. Lord, this is an ordinary staff. प्रभु साधारण सी छड़ी है हाथ में. Stretch it. उसने कहा उसको आगे बढ़ा. This rod has the power to part the Red Sea. इस छड़ी में ताकत है लाल समुद्र को दो हिस्से करने की. Stretch your rod out of Zion Zion and से- rule in the midst of your enemies. सियोन से अपने राजदंड को बढ़ा, अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर. You think that that authority is ordinary. That authority is backed up by heaven. आपको लगता है वो अधिकार साधारण है, लेकिन स्वर्ग का राज्य उस अधिकार के साथ खड़ा हुआ है. Amen. Now, Moses is bringing Israelites out of Egypt. All the wonders. Do you know all the wonders that he did? He did that by stretching the staff. अब मूसा इजरायलियों को लेकर के आ रहा है मिस्र से बंदवाई से छुड़ा करके, और जो अद्भुत काम मूसा ने किया, क्या आप जानते हैं? वो सारे अद्भुत चिन्ह चमत्कार उसने उस छड़ी से किए. Isn't that amazing? He didn't say, God do it. God said, you stretch the staff. उसने अद्भुत बात ये कि उसने ये नहीं कहा परमेश्वर आप करो, परमेश्वर ने कहा तू छड़ी को आगे कर, You stretch the staff. अपनी छड़ी को आगे कर. That means इसका मतलब Moses stretching his rod and God working were happening together. You exercising your authority and then God releasing his power happens together. इसका मतलब मूसा अपनी छड़ी को फैलाता और परमेश्वर अपनी ताकत को इस्तेमाल करता, ये दोनों साथ में होता है. आप अपने राजदंड को फैलाएं, परमेश्वर का राज्य अपनी ताकत को प्रकट करेगा उसके द्वारा. You know, now Moses is bringing these people out and he stands and there is this Red Sea. मूसा इन लोगों को छुड़ा के ला रहा है और सामने लाल समुद्र है. What did Moses do? मूसा ने क्या किया? What we do? जो हम करते He हैं. started to cry to God. वो परमेश्वर को पुकारने लगा. He said, ओ God, प्रभु do something. कुछ तो करो. God said, you know what God said? प्रभु पता है प्रभु ने क्या कहा? I think what God said to Moses, if you will hear, this is the same thing he'll tell you and me today. जो परमेश्वर ने मूसा से कहा अगर सुनोगे तो परमेश्वर आपसे मुझसे भी यही कहेगा आज. Can you put that scripture? You know what God said? पता है परमेश्वर ने Why are you crying to me? मुझको क्यों पुकार रहा है? What? क्या Saying God. बोल रहे प्रभु? Listen, why are you crying to वो me? कह रहा है मुझे क्यों बुला रहे रोके? Why are you crying to me? मुझे क्यों पुकार रहे हो? God said, stretch forth your rod. प्रभु कहता है अपनी छड़ी को आगे कर, Stretch forth your rod. अपनी छड़ी को फैला. Why are you crying to me? रोकर मुझे क्यों पुकार रहा है? Stretch forth your rod. अपनी छड़ी को फैला. And when Moses obeyed that, और जब मूसा ने ऐसा किया, bam, the Red Sea was parted. लाल समुद्र दो. God, my children are going after devil. प्रभु मेरे बच्चे शैतान के पीछे भाग रहे हैं. God said, use the authority I have given. प्रभु कहता है अपने अधिकार का इस्तेमाल कर जो मैंने दिया है. Use the authority I have given you. अपने अधिकार का इस्तेमाल कर. Amen. Hallelujah. हालेलुया. So hear this again. ध्यान से सुनना. And if this is the only thing you will get, still it's powerful. और अगर आज जो सीख रहे हो उसमें यही सुन रहे हो तो ये भी शक्तिशाली है, इसको सुनना. If you don't do anything about what devil is doing in your life, you are giving power to him. अगर शैतान आपकी जिंदगी के खिलाफ कुछ कर रहा है और आप उसका कुछ नहीं कर रहे तो आप उसको ताकत दे रहे हो. Amen.
You know, I was hearing a man of God, and he said, one day a preacher had come to their church. मैं परमेश्वर के एक जन को सुन रहा था और वो बता रहे थे कि एक प्रचारक एक दिन उनके कलीसिया में आए And he said to this guy, और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, he said, I see that God will send you in a coma for 8 years. और उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको कोमा में डालेगा 8 साल के लिए. Run away from such preachers. ऐसे प्रचारकों से दूर भाग जाओ. And he said, God will do that because God wants to break your pride. और उन्होंने कहा परमेश्वर ऐसा इसलिए करेगा वो तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता है. So he was growing up at that time. Today he is a powerful man of God. वो उस समय बढ़ रहे थे प्रभु में, आज वो एक शक्तिशाली परमेश्वर के जन. So he went home and he was as gullible as some of us are. वो घर गए और वो उतने ही ना समझते जितने हम में से कोई होंगे. So he said, God, if that is what you want from my life, I surrender. उन्होंने कहा प्रभु अगर ये आपकी इच्छा है तो मैं ग्रहण करता हूँ. And then he started to have these dreams that he's in coma. और फिर उनको सपने आने लगे कि वो कोमा में है. And one time he got up and he said, if it's from devil, I cancel it in Jesus' name. और एक दिन वो उठे, उन्होंने कहा अगर ये शैतान की तरफ से तो मैं इसको रद्द करता हूँ यीशु के And नाम. then he was out somewhere and a woman came to him and she said, you are seeing dreams and you think they are from devil, but they are from God. और फिर वो बाहर एक दिन गए तो उनको एक स्त्री मिली, उन्होंने कहा तुम सपने देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि वो शैतान की तरफ से है लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से है. If you are people who run after prophets to get a word for you, just beware. अगर आप उन लोगों में से हैं जो भविष्यद्वक्ताओं के पीछे भागते हैं कि आपको कुछ वचन मिल जाए, तो चेतावनी है आपके लिए. Every word that comes is not coming from God. हर एक वचन जो आप सुन रहे हैं लोगों से वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. Be very careful बहुत ध्यान दो what words are falling in your ears. क्या वचन क्या शब्द आपके कानों पे पड़ रहे हैं. Can I speak truth in this place? क्या मैं यहाँ पर सच कह सकता हूँ? As candid as I can. The जितना- least fruits that I have seen are in those Christians' life who have 10,000 teachers. सबसे कम फल मैंने उन मसीहों के जीवन में देखे हैं जिनके 10,000 शिक्षक हैं, 10,000 लोगों से सुनते हैं. वो They have urge to gather information. उनको तलब है जानकारी इकट्ठी करने की हर So जगह. they will go to everyone. तो वो हर एक के पास जाएंगे And then it becomes a spiritual sambar. और फिर एक आत्मिक सांबर बन जाता है उनके अंदर And they have no understanding. और उनको समझ नहीं They होती. don't know what is true and what is lie. उनको नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है. You know what was the most carnal church in the early New Testament? आप जानते हैं नए नियम के आने के नई वाचा में सबसे ज्यादा दुनियावी कलीसिया कौन सी थी? Corinthians. कुरिन्थियों की. And to them, Paul says, you have 10,000 teachers. That's your problem. और उनसे पौलुस कहते हैं तुम्हारे 10,000 शिक्षक हैं, ये तुम्हारी दिक्कत है. You don't have a father. तुम्हारा पिता नहीं है कोई, So you don't have a source of information. You gather from everywhere. तो जानकारी का कोई स्रोत नहीं तुम्हारे जीवन में, सब जगह से इकट्ठी कर लेते हो. What would, I mean, like, think about this. That woman said, the dream that you're getting is not from, you think it's from devil, but it's from God. Second person has come and said to him something supernaturally. Just because somebody is giving you an information supernaturally, does it mean it's from God? No. कल्पना करें अब ये दूसरी महिला है जो उसके पास आकर इस बारे में बात करिए कि जो सपने तुम देख रहे हो तुम्हें लग रहा है शैतान की तरफ से, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से है. इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई जानकारी आपको अलौकिक दुनिया से मिल रही है किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो परमेश्वर की ओर से है, बिल्कुल भी नहीं. I always say this. मैं हमेशा ये कहता हूँ These leaders of these tribes, these 10 spies, कि ये what जो they preached was enough to put 60 lakh people in grave. कि जो 10 गोत्रों के, इज़राइल के 10 गोत्रों के जो अगुवे थे, उन्होंने जो प्रचार किया वो काफी था 60 लाख लोगों को कब्र में डालने के लिए. That's 80%. 80%. And that's what the 80% you will hear. There are 80% messages that are still coming from Mount Sinai. That God will kill you, God will give you sickness, God will curse you.
और यही है जो मसीह जगत में भी आपको मिलेगा। 80% संदेश जो आपको मिलेंगे वो सिनाई पर्वत से मिलेंगे, जहां वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें मारना चाहता है, वो तुम्हें बीमारी देगा। But praise God, this pulpit is not on Mount Sinai, it's on Mount Zion. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये पुलपिट सीनाई पर्वत पर नहीं, सिय्योन पर्वत पर है। Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। Amen. Please stop hunting for preachers in every city कृपया- and submit and learn. कृपया करके हर शहर में भाग भाग कर प्रचारकों को ढूंढना बंद करो, अपने जीवन को समर्पित करो और सीखो। You have 10,000 teachers, but you don't have a father. हजारों प्रचारक हैं आपके जीवन में, पर कोई पिता नहीं है। Amen. So then he went to church सो फिर वो व्यक्ति कलीसिया गए and the same preacher was there. और वही प्रचारक वहां पे थे, And he said again, और फिर से उन्होंने कहा, he said, it will be a very terrible time for you, those 8 years. उन्होंने कहा वो 8 साल बहुत ही खराब साल होंगे And he तुम्हारे। said, look at me, I have 5 or 6 incurable diseases. उन्होंने कहा मुझे देखो, मुझे 5 या 6 लाइलाज बीमारियां हैं, God gave it to me. प्रभु ने मुझे दी। I don't know which God, not the God that Jesus came to preach. पता नहीं कौन से प्रभु ने की, क्योंकि जिस प्रभु का प्रचार यीशु करने आया उसने तो नहीं दी। The Bible says, do not be deceived. बाइबल कहती है धोखा मत खाओ। Every good and perfect gift comes from the Father of light. हर एक उत्तम दान और वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। If you believe God gives sicknesses, you are deceived. अगर आपको लगता है परमेश्वर बीमारी देता है तो आप धोखे में हैं। If you believe God will put you in troubles, you are deceived. अगर आपको लगता है परमेश्वर आपको समस्या में डालेगा तो आप धोखा खाए हुए हैं। And then he said something. फिर You उसने know, कुछ कहा। devil will always cross boundaries. आप जानते हैं शैतान हमेशा सीमा पार करते रहता है। He will go क्रॉस करते हैं। overboard. वो जबरदस्ती, If he would have just told this man of God that अगर this will happen, he would have believed it. अगर उसने इन व्यक्ति से सिर्फ ये कहा था कि ऐसा होगा तो वो मान लेते। And he said, फिर उसने क्या कहा? and God has not allowed me उसने कहा परमेश्वर ने मुझे अनुमति नहीं दी है to go to the word of God for last 8 years. कि मैं पिछले 8 साल से परमेश्वर के वचन में जाऊं। There are many weirdos like that, बहुत से roaming around. बहुत से killing अजीब लोग people. ऐसे हैं, बहुत से अजीब लोग ऐसे हैं मसीह जगत में जो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। And that was the time he got up and he said, I rebuke it in Jesus' name. This is not God's spirit. This message is not from God. I will live and not die, but declare the works of the Lord. And today that minister is 73 years old. 73 years old. That coma never came because it was not from God. Are you getting what I'm saying? और जब उस व्यक्ति ने ये बात कही, ये व्यक्ति खड़े हुए, ये प्रचारक उठ खड़े, ये परमेश्वर के जन उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं इस बात को नाश करता हूं, डांटता हूं, क्योंकि ये उस आत्मा की ओर से नहीं जो मेरे परमेश्वर का आत्मा है। आज वो व्यक्ति 73 वर्ष के हैं, वो कोमा कभी नहीं आया उनको। But what would have happened if he would have believed it? लेकिन क्या हुआ होता अगर उन्होंने वो मान लिया होता And he would have agreed to it. और सहमत हो जाते उसके साथ। Let us not remain gullible anymore. हम ना समझ ना रहे अब, That you will gulp down everything that is said to you in the name of prophecy. कि जो कुछ कोई आपको बोलेगा भविष्यवाणी के नाम में उसको घोट के पी लोगे। Oh, brother, I'm seeing next 3 years you have wilderness season. ओ प्रभु, मैं देख रहा हूँ भाई अगले 3 साल तुम्हारे The जीवन Bible says मरुस्थल के जीवन है। the path of the righteous shine brighter and brighter and brighter. That means your coming days are better than your past days. बाइबल कहती है धर्मी जन का मार्ग प्रकाशमान होता चला जाता है, उसका प्रकाश बढ़ता चला जाता है। इसका मतलब आपके आने वाले 3 साल पिछले बीते हुए 3 साल से ज्यादा प्रकाशमान होंगे।